Yes, good evening, Krishna. Good evening, Krishna Parmar, and all others. Good evening. Okay, so before starting my today's class, I'm going to ask you something. Are you on holidays? Like, have you got the Dashera holidays? Just let me know if you are on holidays. No? Okay. So you have to get the holidays now. ठीक है, कल या परसों से आपको holidays रहेंगे, है ना? Okay. All right. So, let's move ahead and start the class. So, as you know, because I had some health problem, I couldn't take the last class. Yudhishthir sir has taken the class for you, and based on his information, he has completed biotechnology principle and processes ka full chapter. Okay, so he has completed that. So today we are going to start a new chapter, that is biotechnology and its applications. Okay, you're going to get very minimal questions from this area, from this chapter, but still whatever you get, you definitely get a question from BT. Okay, so BT pest control and one golden rice and one from the molecular diagnosis. Okay, and another from transgenic animals. So these four are actually that important areas from where you can expect questions in this chapter. Okay, so we are going to start the class now. If you have any doubts regarding the biotechnology principle and processes, you can ask me in the chat box. If you still have any doubts regarding that chapter, we have completed that chapter with a very detailed manner. I have done the this one, a selectable marker, which is actually confusing to most of the students, but I made sure to complete it so that you don't have any confusions. उसके अलावा बेटा जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी हैं, जैसे आप पढ़ लो तो समझ सकते हो, या फिर कोई गाइड में पढ़ लिया, या फिर कोई भी एक ऐसी किताब में पढ़ लिया तो आप समझ सकते हो. ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर एक ऐसी चीज है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता था, वो क्लियर है. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं. सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो देखते हैं आपको कितना नॉलेज है नहीं है इस कॉन्सेप्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स? Okay, natural genetic engineer of plants. Options are yeast, Agrobacterium tumefaciens, E. coli, Mycoplasma. So these are your options. As you know, I can't launch the poll here. Please make sure that you answer in the comment box or in the chat box. This question has been asked in the previous years. Yes, very good, Janvi Bhavnagar. You are very correct. Okay. So based on Janvi Bhavnagar's answer, the answer is B. Okay. So let's see which is the answer then. All right. तो यहाँ पे मैंने कुछ एनोटेट किया है, तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स. तो हमको क्या देखना है बेटा, हमको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर देखना है प्लांट्स का. आप सब लोगों को पता है हमने आर्टिफिशियली या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है प्लांट्स को, या फिर इंजीनियर किया है किसी भी तरीके से. Okay, by adding our gene of interest or alien DNA, so we have modified them and we made them a modified organism or a crop. But that is a different thing that we have done. Okay, it is an anything you say, it is an artificial process. बट नेचुरली जो प्लांट में होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो प्लांट में ही नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है, दैट इज मेड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ओके, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शंस में क्या लिखा है, ईस्ट लिखा है. ईस्ट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट सैकेरोमाइसिस व्हिच इज हेल्पफुल इन बेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वाइन. ठीक है, तो ब्रीवरी में हेल्प होता है. देन कमिंग टू ई कोलाई, एज यू नो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है ई कोलाई के बारे में. जब कभी भी आप एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट बेटा, एक जीन होता है, जीन को आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हो. ओके, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. यूजुअली इट हैपेंस आर्टिफिशियली, बट यहाँ पे नेचुरल की बात हो रही है बस. ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, आप लोग लेते हो एक प्लाज्मिड. ओके, प्लाज्मिड इज नथिंग बट एन वेक्टर व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द बैक्टीरियम.
प्लास्मिड को लेके आपने रेन एंजाइम का यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया, एंड सेम एंजाइम आपने यूज करके जीन ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको मिलाया, लाइगेस एंजाइम यूज किया, एंड आपको मिला रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। इसको आपने होस्ट में डाला। तो जो होस्ट हम लोग कहते हैं ना, तो वो होस्ट यूजुअली कौन होता है? वो होता है यूजुअली इकोलाई। ठीक है, तो होस्ट कौन होता है? यूजुअली इकोलाई होता है। तो इसको हम क्लोनिंग करने के लिए छोड़ते हैं। तो दिस इकोलाई इज अ रेसिपिएंट होस्ट। तो माइकोप्लाज्मा आप सब लोग पढ़े हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, तो पीपीएलओ अपने वहां पे पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, विच इज अ वेरी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बेटा, दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज हैविंग अ टाइप ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं टीआई। ओके, टीआई प्लाज्मिड। तो इस टीआई का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इट इज एन ट्यूमर इंड्यूसिंग कैरेक्टर। इसको हम एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम दूसरे में इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो ये नेचुरली है, ये प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम में, बट इसको हम मॉडिफाई करके आर्टिफिशियल बेसिस में दूसरे प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जान लो तो काफी है इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। ओह माय गॉड, इस पीपीटी में तो बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है। ओके, अगर मैं बनाती तो इतना कुछ इसका डिजाइनिंग नहीं करती, किसी और ने बनाया है, तो इसीलिए थोड़ा पीपीटी बहुत थोड़ा फैंसी टाइप है। कोई बात नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बेटा ये सारे लिस्ट दिया है, इसको याद रखिए। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? बायोफार्मास्यूटिकल्स में यूज होती है। ठीक है, थेरापेटिक्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज होती है। देन मेडिकल फील्ड में यूज होती है, जहां पे आप बोथ फार्मेसी एंड लाइफ ऑर्गेनिजम्स को भी इंड्यूस यूज कर सकते हो वहां पे। देन डायग्नोस्टिक्स, कोई भी एक बीमारी को डायग्नोज करना है और फिर उसको अकॉर्डिंगली अपने मेडिसिन देना होता है, वहां पे यूज होता है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, अवर इंटरेस्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स टुडे, तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड में भी हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन। कि बायो रेमिडिएशन को सिंपली हम कैसे पढ़ें बेटा? देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं हमारे फॉल्ट्स को रिकवर करने के लिए, या फिर समझ लो हमारे कोई गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, समझ लो कोई एक डंप है, ठीक है, सारा आपने कचरा एक जगह पे जमा कर लिया, सारा आपके पास ऑर्गेनिक कचरा है। आप इस कचरे का क्या करोगे? आपने यहाँ पे यूज करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डीके करेंगे एंड देन उसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। ये एक यूज है। दूसरा और एक बेस्ट चीज मैं बता सकती हूँ, अगर कोई ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, कोई बोट के थ्रू एक ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वहां पे किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, ऑयल स्पिल हो गया ओशन में, तो ओशन में क्या करेगा? आपको पता है देयर इज अ वेरिएशन इन डेंसिटी। ठीक है, वो पानी के साथ घुल मिल नहीं जाएगा, तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसका हम क्या करेंगे? कोई ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे और उस डैमेज को या फिर उस फ्लोटिंग ऑयल को हम लोग उसको निकालेंगे बाय यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। देन वेस्ट ट्रीटमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए एंड उसको नॉट जस्ट ट्रीटिंग इट बट मेकिंग इट मोर यूजफुल। ठीक है, इकोनॉमिकली यूजफुल बनाने के लिए, फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीजों में आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस या फिर एप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक है, सी बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट एरिया। आपके सिलेबस में बहुत छोटा दिया है, ठीक है, बहुत कम दिया है। इसको आप अगर आगे जाके पढ़ते जाओगे ना, तो बहुत वास्ट एरिया है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ आपके जो एनसीईआरटी में दिया है उसके बारे में। ठीक है, ओ माय गॉड, कितना भाई, कितना ये इतना इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। चलो, सो हियर ओके, सो अरे इसका प्रॉब्लम क्या है? ये रुक क्यों नहीं रहा? ओके, सो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। फर्स्ट है विच प्रोवाइड्स द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। ठीक है, तो आप कोई भी एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकती हो एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को। देखो, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म आप कैसे बनाते हो? अपने तरीके से, यू मॉडिफाइड
ओके, यू मॉडिफाई एंड मेक इट एन एज एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। तो यूजुअली ये होते हैं माइक्रोब्स। ओके, आप ऐसे नहीं बता सकते मैम आई इम्प्रूव्ड एन एनिमल, आई इम्प्रूव्ड एन ह्यूमन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरे ह्यूमन के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, या फिर कोई एक एनिमल के ऊपर इसका काम नहीं चल सकता। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप इंप्रूव कर सकते हो, या कोई एंजाइम या फिर कोई प्रोटीन पे अपना काम दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, यू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। यूजुअली इट वुड बी अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करते हैं तो मुझे पता है कि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का कैटलिस्ट नहीं सोचो बेटा, यहाँ पे बायो कैटलिस्ट इज अ डिफरेंट वन। यूजुअली हम लोग एंजाइम्स को कहते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन को बढ़ाता भी है, फिर आगे लेके भी जाता है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। देन टू क्रिएट द ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब देखो बेटा, आपने अपने कैटलिस्ट बना लिया। ठीक है, आपने क्या किया, इंजीनियरिंग को यूज किया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग को, यू प्रिपेयर्ड दैट बायो कैटलिस्ट। आपने बड़ी मुश्किल से वो एंजाइम प्रिपेयर किया। अब आपने जब इसको प्रिपेयर कर लिया तो इसको आपने अप्लाई भी करना है ना, इसको अप्लाई भी करना है। तो ये एप्लीकेशन के लिए आपने देना है फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को, उस मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आपने देना है फेवरेबल कंडीशन, ताकि वो एक्ट कर सके, वो अपना काम कर सके। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ भाई हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया या कोई भी एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसको ऐसे छोड़ दिया काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता। उसको आपने मॉडिफाई किया है तो उसके हिसाब से एनवायरमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट रिसर्च एरिया है जहां पे you create the optimal conditions through engineering for a catalyst to act. ठीक है, and the third research area is downstreaming process technology to purify protein and organic compound. ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपने पढ़ा, जैसे बायोरिएक्टर में आपने बल्क में प्रोड्यूस किया। ठीक है, बल्क में प्रोड्यूस करने के बाद आपने कैसे उसको प्रोसेस किया, कैसे जो रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड प्रोटीन था उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके निकाला। ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं बेटा लास्ट चैप्टर में, युधिष्ठिर सर ने आपको बताई हैं। ठीक है, तो वहां पे होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स आप यूज कर सकते हो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो। वहां पे आप लोग यूज कर सकते हो बैच कल्चर मीडियम, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। ओके, तो ऐसे कुछ कल्चर मीडियम्स होते हैं, उनको यूज करते हो। बायोरिएक्टर्स में आप कंटिन्यूअस फ्लो भी यूज कर सकते हो, बैच में बना सकते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, आई होप यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो वहां पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आप यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने जो डिजायर्ड प्रोटीन है या फिर डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, जो भी एक प्रोडक्ट है उसको आप ऑब्टेन कर रहे हो। ओके, सो दीज थ्री आर मेजर क्रिटिकल रिसर्च एरियाज बायोटेक्नोलॉजी में। अब आप मुझे बोलोगे मैम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरत क्या है पढ़ने की। देखो, जैसे मैंने बताया ना, आप ये दो चैप्टर्स पढ़ के एकदम इंटरेस्टेड हो गए, आपको लगता है कि हाँ मैं बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करूंगा या साइंटिस्ट बनूंगी, तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल रिसर्च एरियाज कौन सी हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन तीनों में आपने एक्सेल करना है। ठीक है, आगे जाके और अपकमिंग ईयर्स में। ठीक है, सो दिस मच इज एनफ हियर। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया था वही लिया है मैंने। फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट नथिंग अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताती हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया, देन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आते हैं आपका चैप्टर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का चैप्टर आता है। तो इन चैप्टर्स में वो लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पूछते। किन चैप्टर्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछते हैं? रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कभी कभी। और इसके अलावा इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जो भी आप इकोलॉजी पढ़ते हो ना, वहां पे थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। ठीक है, एंड इसमें भी आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, वहां पे भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस हो गया, एनहांसमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज का आपके सिलेबस में नहीं है बस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आप एनसीईआरटी को ही क्लियरली पढ़ लो, इतना काफी है। ठीक है, अब हम लोग एग्रीकल्चर में देखते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उससे पहले 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। देखो बेटा, आप सब लोगों को पता है हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है ना। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को
सब लोगों को फीड करना है, सब अगर लोग हैं तो लोगों के पास मुंह भी है खाने के लिए, तो उस खाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन करके आप लोगों ने एक आइडिया लगाया कि हाँ भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन करके हमने 3 टाइम्स यील्ड को बढ़ाया, ओके, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो ये एक आइडिया था जहां पे हमने एग्रीकल्चर को केमिकल्स के थ्रू हमने यील्ड को जनरेट किया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक टाइम पे बहुत बूमिंग की, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में हेल्प हुआ, बहुत ज्यादा आपने यील्ड प्रोड्यूस किया। बट उसके बाद होता क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स विल मेक, ओके, विल मेक द प्रॉब्लम इन पोल्यूशन। ठीक है, आपने इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए तो पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस पोल्यूशन की वजह से बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ओके, इस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये होता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज किया, जहां पे आप पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स को यूज नहीं कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर रहे हो, आप मैन्यूर का यूज कर रहे हो जो कि लिविंग है, ओके, कोई भी लिविंग पार्ट से यूज होता है, दैट इज मैन्योर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ये सारे एग्रीकल्चरिस्ट या फिर जो फार्मर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते इस मेथड को। तो अल्टीमेटली आपने एक बेस्ट सोल्यूशन निकाला, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ भी ऑर्गेनिजम्स को या फिर क्रॉप को मॉडिफाई करते हो, उसका जीन को मॉडिफाई करके आप एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हो। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिससे कोई भी हार्म नहीं होता, ओके, हार्म नहीं होता, हार्म कम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये आज तक, आज भी, मतलब आज और आगे आने वाले बहुत सालों में ये ऐसा यूजफुल रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर्स ताकि हम या यूज नहीं कर सके या फिर कोई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करें, इंसेक्टिसाइड्स यूज ना करें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं। तो इन रेजिस्टेंट क्रॉप्स के थ्रू आप क्या करोगे बेटा, यूज कर रहे हो, ओके, क्रॉप्स में। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट इज जीएमओस आर द plants, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulation। ठीक है, मैनिपुलेशन के थ्रू इनको ऑल्टर करके आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब आप लोगों को पता चला कि हाँ भाई, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर भी ठीक नहीं है, ऑर्गेनिक भी हाँ भी अगर कर रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, ये सब इंसानों के बस की बात नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का हम कुछ क्रॉप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हमने क्या यूज किया है, प्लास्मिड लिया है, प्लास्मिड में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करके आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख लो, this recombinant DNA, that is this recombinant DNA which is prepared by the plasmid and gene of interest will be introduced into a host। ठीक है, होस्ट कौन है, होस्ट है इकोलाई। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, देखो हाई यील्ड हार्वेस्ट मिल रहा है आपको। आप ना पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे हो ताकि वो केमिकल है। ठीक है, केमिकल से बन रहे हैं, तो ये भी आपको पोल्यूशन में हो रहा था, लेकिन इसको आपने ओवरकम किया। ठीक है, इसको आपने ओवरकम किया बाय यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे एग्रोकेमिकल में, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम यूज हो रहा था। तो इसमें भी आपने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ जीएमसीस और जीएमओस। ठीक है, तो इन सारे चीजों को आपने ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ जीएमओस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड और द जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है,
आप ना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके आप क्या यूज कर सकते हो, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। यूजुअली क्या होता था, आपने केमिकली पेस्टिसाइड्स यूज किए, आपने कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज किया, तो इससे प्रॉब्लम होती थी फर्टिलिटी ऑफ द लैंड को, एंड देन पोल्यूशन होता था। बट आपने जब जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से क्रॉप्स बना लिए, तो यहाँ पे आपने कैसे क्रॉप्स बनाए, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज बीटी कॉटन, एंड दिस बीटी कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपने इसमें से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाने के लिए आपने जीएमओस का यूज किया या फिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का यूज किया। देन सेकेंड पॉइंट इज टॉलरेंस टू रेजिस्टेंट एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी एक एबायोटिक स्ट्रेस आ गया, जैसे कोई क्रॉप है, ठीक है, आपके पास क्रॉप्स हैं, जोर से हवा आ गई या फिर जोर से बारिश आ गया, तो आपकी क्रॉप में ना स्टर्डीनेस होती है, ठीक है। तो इस एबायोटिक स्ट्रेस को वो हैंडल कर सकते हैं, एकदम से ऐसे सूख के गिर के मर नहीं जाएंगे प्लांट्स, ठीक है। तो सारा एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, इसको टॉलरेट कर सकते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। या फिर कोई भी एक ड्रॉट आ गया, एकदम से कोई ड्रॉट आ गया, या फिर टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर बारिश नहीं हुई, तो सारे एबायोटिक स्ट्रेस को हमारे जीएमसीज जो हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी यूजुअली एग्जॉस्ट हो जाती है जब आप कंटिन्यूअसली क्रॉप ग्रो कर रहे हो एक लैंड में। एक लैंड में आप अगर जब कंटिन्यूअसली क्रॉप ग्रो करते हो तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। बट आप जब जीएमसी यूज करते हो तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंटैक्ट रहती है, इतने ज्यादा फर्टिलिटी की नीड भी नहीं रहती, और आप इसको मिक्स्ड क्रॉप सर्कुलेशन के थ्रू आप इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन भी करके रख सकते हैं। देन रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और प्री हार्वेस्ट लॉसेस ऑल्सो, ठीक है। आप हार्वेस्ट करने से पहले के जो लॉसेस हैं, जैसे थोड़ा हवाई आपकी जो ईल्ड है वो अभी हार्वेस्ट करने से पहले ही गिर के खत्म हो गई या फिर खराब हो गई, वो चीज। दूसरी, हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने जब उसको स्टोर कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो, बिकॉज आपने यूज किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उसकी जो ईल्ड है वो जल्दी खराब नहीं हो जाएगी। आप उसको ज्यादा टाइम तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो या फिर स्टोर कर सकते हो। ओके, देन इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आप बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग जीएमसीज। एंड देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनमें आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी यूज करते हो, जिसको हम कॉमनली कहते हैं वीड किलर्स, ठीक है। आपको वीड को किल करने के लिए आपने बहुत सारा केमिकल्स यूज करना होता है, ताकि वीड्स आर अनवांटेड। जब भी आप एक क्रॉप प्लांट देखते हो तो वीड बहुत ज्यादा होता है, उसको यूजुअली या तो आप मैनुअली निकालते जाओ हर प्लांट को, या फिर आपने क्या यूज करना होता है, हर्बिसाइड्स को यूज करना होता है। बट यहाँ पे आप जब इन टाइप के जीएमसीज को यूज करते हो तो वहां पे उनकी एबिलिटी होती है कि वो हर्बिसाइड को रेजिस्ट करें, ठीक है, वो एक एडवांटेज है। देन ऑल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं उससे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम होगा, फिर पोल्यूशन होगा, फिर आगे जाके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये जीएमसी से क्या हो रहा है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, और जितना हो सके उतना एग्रीकल्चर में आप इसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो इतने सारे चीजें हैं जो आपने देखनी होती हैं। ओके, दिस आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ जीएमसीज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को जैसे हमने एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली कैसे करते हैं। हमने जब से बता रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा था उसमें कि हाँ भाई पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो चीजें यहाँ पे देखेंगे। देखो, तो अभी भी जो मैं बताई ना, जीएमसी, व्हाट इज जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। These genetically modified crops have the ability to build resistance for pest, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जिनके पास एबिलिटी होती है ताकि वो रेजिस्ट कर सके कोई आने वाले पेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेचुरली वो उनके अंदर इनबिल्ट होता है, आपको ऊपर से पेस्टिसाइड डालने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से आप जीएमसी जब यूज करोगे तो क्या दूसरा हेल्पफुल होगा, आप यूज करोगे, जो यूज ऑफ केमिकल्स है वो कम होगा। जैसे इंसेक्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा, हर्बिसाइड आप कम यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स कम यूज करोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर में यूज कर रहे थे ना, एकदम हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो कम होगा ताकि पोल्यूशन कम हो एंड यू गेट द फर्टाइल लैंड विथ यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं जीएमसी से। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स,
ठीक है, दीज आर बायोपेस्टिसाइड्स बिकॉज दीज आर नेचुरल, आप यहाँ पे कोई केमिकल का यूज नहीं कर रहे हो. इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस डिक्रीजेस द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और एनी अदर साइडल्स. तो एग्जाम्पल्स देखो, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस, टोमेटो, पोटेटो, सोयाबीन. तो आपकी सिलेबस में बीटी कॉटन को दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि कैसे बीटी कॉटन को हम लोग बनाए, या फिर बीटी को यूज करके हमने पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट बनाया. तो आप मुझे पूछोगे कि मैम बीटी क्या है. ओके, बीटी क्या है बेटा? बीटी इज नथिंग बट अ बैक्टीरियम. बीटी देखो, एक बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरियम है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं बीटी. ठीक है, तो ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है. ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर एक इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इंसेक्ट्स. देखो, अभी हम लोग कॉटन के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक बैक्टीरियम के बारे में, दैट इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस. तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इंसेक्ट्स. ठीक है, वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म है? ये जो बीटी है, ये प्रोड्यूस करता है एक टाइप का प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन या फिर क्राई प्रोटीन. Okay, so BT produces a special type of protein called as cry protein or endotoxin. ठीक है, ये यूजुअली क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है एंड ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. कौन बना रहा है? बीटी बैक्टीरिया बना रहा है. ये डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इंसेक्ट्स. कैसे डिफेंस कर रहा है? विद द प्रोडक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन और एंडोटॉक्सिन. अब जब प्रोटीन कोई बैक्टीरिया में बन रहा है, तो वो प्रोटीन कैसे बनेगा? हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है. जीन होगा, जीन में से ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होके कोई प्रोटीन बनेगा, है ना. तो ये जो क्राई प्रोटीन बन रहा है, वो कैसे बनेगा? कोई जीन से बनेगा, है ना. तो क्राई प्रोटीन किस जीन से बन रहा है? क्राई जीन से बन रहा है. तो इस बीटी बैक्टीरिया के अंदर कोई एक ऐसा जीन है जिसका नाम है क्राई जीन. ये जीन एक डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है बाय प्रोडक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन, जो कि यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे मैम ये इनएक्टिव क्यों है, कब एक्टिव होगा? देखो बेटा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर है, अगर ये एक्टिवेट होगा तो बैक्टीरिया को प्रॉब्लम होगा. जिसे कहते हैं ना, खुद अपना जना, नहीं ये नहीं कहूंगी मैं, खुद अपना जो ग्रेव है उसको डिग करके खुद जाके सो गए, ऐसी बात हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रखता है ताकि ये जो टारगेट है इंसेक्ट, उसको ही हार्म कर सके. ठीक है, तो अब ये जो क्राई जीन, जो क्राई प्रोटीन बना है, तो इनएक्टिव है ये बैक्टीरिया के अंदर. अब क्या होगा? जैसे ही इंसेक्ट आएगा और इस बैक्टीरिया को अंदर ले लेगा. ठीक है, इंसेक्ट आएगा, बैक्टीरिया को अंदर ले लेगा, तो अब ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया जब ये इंसेक्ट के गट में जाएगा, या फिर ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट के गट में जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, आप मुझे पूछोगे मैम कैसे एक्टिवेट हुआ? क्योंकि जो इंसेक्ट के गट का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है. वो अल्कलाइन पीएच के में कांटेक्ट में आते ही जो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन था या फिर इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन था, वो एक्टिव हो जाता है. और जो गट है, ओके, इंसेक्ट का जो गट है, उसमें छोटे 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 पोर्स बना देता है. एंड छोटे छोटे पोर्स जो बनाता है, उससे अल्टीमेटली क्या होगा? इंसेक्ट का डेथ होता है. तो ये जो मैकेनिज्म है जिससे बैक्टीरिया एक इंसेक्ट को मारने में हेल्प कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं इन अ क्रॉप. कैसे लेंगे? तो ये जो देखो बेटा, जिसमें जो क्राई जीन है ना, तो इस क्राई जीन को आप एक्सट्रैक्ट करके कोई एक प्लांट में डाल रहे हो. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? बीटी कॉटन जो बनाना, तो यहाँ पे हम लोग कॉटन प्लांट में, ओके, इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं विद द यूज ऑफ बीटी का कुछ जीन. कौन सा जीन मैम? आप बीटी का कौन सा जीन यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो क्राई जीन. ओके, क्राई जीन आप एक्सट्रैक्ट कर लिए बीटी बैक्टीरिया से एंड उसको कॉटन के अंदर डाल दिया. अब क्या हो गया? कॉटन के अंदर कुछ टाइम रहने के बाद ये कॉटन भी उसी तरीके का प्रोटीन बनाएगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा. तो इस क्राई प्रोटीन को जब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, अब समझ लो कोई भी पेस्ट आ गया, कोई इंसेक्ट आ गया, अब वो इंसेक्ट आगे उस कॉटन को खाएगा.
उस कॉटन प्लांट के लीव्स को खाएगा, कॉटन को खाएगा, तो अब क्या होगा, तो उस कॉटन में, उस कॉटन के लीफ में तो हमारा क्राई प्रोटीन है, एंडोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में था। अब कोई भी इंसेक्ट जब उसका पत्ता खाएगा कॉटन का, उसमें है एंडोटॉक्सिन, अब वो गट में गया इंसेक्ट के, एंड इंसेक्ट के गट में जाके एक्टिव हुआ और इंसेक्ट को मार दिया। समझ आ रहा है? तो इससे क्या होगा, हम लोग बायोलॉजिकली इनबिल्ट इन कॉटन प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे देख लो, वही चीज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमने कॉटन प्लांट का यूज किया, इस कॉटन प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग क्राइजीन। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइजीन है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको अपने कॉटन में डाल दिया। तो अब आप बीटी कॉटन आप जो कह रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। द वर्ड ट्रांसजेनिक मीन्स जिसका जेनेटिक मेकअप जो है उसको हमने मॉडिफाई किया है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे मैम आपने कैसे क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर? हमने यहाँ पे वेक्टर का यूज किया है। ओके, तो कौन सा वेक्टर हमने यूज किया है बेटा? टीआई प्लाज्मिड। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड था। ठीक है, उसको हमने यूटिलाइज किया, उसकी पैथोजेनिसिटी को मारा, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग पैथोजेनिसिटी थी उसको खत्म किया, और हमने इसको एज अ वेक्टर यूज किया टीआई प्लाज्मिड में। हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, देन वी मेड इट एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन उसको कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये फर्स्ट कॉटन प्लांट है जिसमें आपने इंट्रोड्यूस किया सारा कुछ। ओके, अब ये जो कॉटन प्लांट है ये बढ़ेगा, फ्लावर्स बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, फिर सीड्स देगा। तो इसके जो फर्स्ट जो प्लांट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन का, जो इसके जो सीड्स हैं वो आप जाके सो करो। तो वो सारे आप एज अ क्रॉप आप सो करोगे, तो आपके पास एक क्रॉप यील्डिंग जो हो रही है ना, एक पूरे लैंड में आपके पास जो बीटी कॉटन है वो सारे के पास क्या स्पेशलिटी है, उन सारे प्लांट्स के पास क्राइजीन है। ठीक है, तो कोई भी इंसेक्ट आके कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी खा लिया तो वो मर जाएगा। तो इससे आप क्या कर रहे हो, पेस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? बीटी कॉटन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब इतना जान लो तो काफी है। ठीक है, अब इतना जान लो तो काफी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। Some strains of BT, that is Bacillus thuringiensis, have protein that kill insects like coleopterans, that is beetles, lepidopterans, that is tobacco budworm, इन आर्मीवर्म एंड डिप्टेरम्स, फ्लाइज और मस्किटोस। ठीक है, तो ये सारे ही आप इनको खत्म कर सकते हो इंसेक्ट्स को बाय यूजिंग द स्ट्रेन्स ऑफ बीटी। ओके, देन बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ओके, जिसको आप कह सकते हो बीटी टॉक्सिन या फिर एंडोटॉक्सिन या फिर क्राई प्रोटीन। ठीक है, इन सारों का नाम है, एक टॉक्सिक प्रोटीन है। ओके, बीटी टॉक्सिन विच इज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, जब ये पर्टिकुलर फेज में होगा, ये क्रिस्टलाइन में होगा, एंड इट इज प्रोटॉक्सिन, मतलब इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो इसका प्रोटॉक्सिन कह सकते हो। जब ये एक्टिवेट होगा तो तब टॉक्सिक नेचर दिखाएगा, है ना? So during particular phase of growth, it does not kill the bacillus as it exists in a inactive protoxin. जब ये बैसिलस बैक्टीरिया के अंदर है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के शेप में है। जब ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा तब ड्यू टू इट्स पीएच वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट एन इनएक्टिव टॉक्सिन इट गेट्स कन्वर्टेड टू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो गट में जाके पीएच वहां पे चेंज होगा तो उसके थ्रू ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, द टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट्स द पोर्स। मैंने बताया ना, छोटे छोटे पोर्स बना देता है, छोटे छोटे होल्स बनाता है। इसके वजह से क्या होगा, जो सेल्स हैं वो स्वेल करेंगे और इवेंचुअली फट जाएंगे। ओके, जब सेल्स फट जाएंगे तो क्या होगा, द डेथ ऑफ इंसेक्ट विल अकर। तो इस तरीके से हम लोग बीटी कॉटन का सिंथेसाइज करे हैं विच हेल्प्स इन अ नेचुरल पेस्ट रेजिस्टेंट। ओके, तो ये चीजें हैं। नाउ दिस बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम BT, that is bacteria, and incorporated into crop plants such as cotton. मैंने बताया ना, तो इस कैरेक्टर को आपने क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इन द कॉटन। मोस्ट BT टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, आप मुझे पूछोगे मैम हाँ मेरे पास कुछ 100 इंसेक्ट्स हैं, क्या ये बीटी कॉटन जो है सारे इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कोई मैजिक नहीं है।
ठीक है, ये ह्यूमन मेड एक छोटा सा ट्राई है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं समझो कि दुनिया के सारे इंसेक्ट्स को ये बीटी कॉटन जो प्लांट है वो रेजिस्ट करेगा, नहीं, ये स्पेसिफिक होता है। ओके, सो मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड एज CRY1AC which is named as CRY, ठीक है। Proteins encoded by gene that is CRY1AC and CRY2AB control the cotton bollworms, ठीक है। तो ये जो जीन्स हैं ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म्स को, बॉलवर्म्स को। देन CRY1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार ये पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीटी टॉक्सिन इज हार्मफुल टू इंसेक्ट्स लाइक, किस टाइप के इंसेक्ट्स में बीटी टॉक्सिन ओके यूज होता है? लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स, डिप्टेरॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। विच इज द आंसर? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर है। डी, वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा पार्मर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? डी इज द आंसर। तो ये जो सारे हैं ना, इन सारों को आपका जो बीटी टॉक्सिन है वो हार्मफुल है इन इंसेक्ट्स के ऑपोजिट में, ठीक है। अब ना आपने एक पढ़ लिया बीटी कॉटन, अब दूसरा है जिसको हम कहते हैं निमाटोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो निमाटोड रेजिस्टेंस ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अब अगर मैं ये समझाऊंगी ना तो लिटरली मुझे 45 मिनट सिर्फ निमाटोड के लिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक बेस्ट आइडिया निकाला है। यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, ओके। आप कमेंट सेक्शन में आके देखो, चैट में यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है। दिस लिंक इज फ्रॉम खान एकेडमी, ओके। ऐसा मत समझो कि मैम ये अवंती में रह के किसी और को प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है बेटा। ये खुद मैं भी समझा सकती हूँ, बट ये है हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, टाइम कंस्ट्रेन है, इसीलिए मैं आपका एक होमवर्क दे रही हूँ। आप ये जो यूट्यूब का मैंने लिंक भेजा है, इसको आप देखो, कुछ 10-11 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखो, समझो। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 1 से 2 बार देखो। जो कल की क्लास होगी, नहीं कल तो छुट्टी है, जो थर्सडे की क्लास होगी, थर्सडे की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं तब पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखो, इसके बाद हम लोग निमाटोड का डिस्कशन करेंगे, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वो एक पार्ट को हम लोग छोड़ के एप्लीकेशन इन मेडिसिन में एंटर करेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ पे मैंने भेजा है लिंक, खान एकेडमी का एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो आरएनए इंटरफेरेंस को देखिए, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं होती तो मैं भी सेम एक्सप्लेन करती, बट आई वांट टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ टाइम, ठीक है, सिलेबस जल्दी से खत्म हो, इसीलिए आप ये देखो, फिर मैं 2-3 स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। मैंने बताया ना, तो हमारा जो मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिक्स है, वहां पे भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया है फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। जो ड्रग्स हैं उनका मास प्रोडक्शन करने के लिए और बहुत इफेक्टिव ड्रग्स बनाने के लिए, सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, और जितना बना है उसको इफेक्टिवली बनाने के लिए, ठीक है। देन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। हम सबको पता है, बट रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डज नॉट हैव सच प्रॉब्लम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा। यूजुअली आप अब देखते हो ना, कोई भी ऑर्गन का आपने ट्रांसप्लांट देख रहे हो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, जैसे किडनी, ओके। समझ लो एक पेशेंट है, उसका किडनी फेल हो गया, अब इस किडनी को एक डोनर किडनी की जरूरत पड़ेगी। अब वो आप क्या करोगे, उस डोनर किडनी अगर आप इंसान का डाल रहे हो तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, ओके, थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। बट इंसान का मिलना इतना मुश्किल भी तो है, कोई भी अपना किडनी ऐसे कैसे दे देगा? हाँ भाई, आप बोलोगे कि मैम किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट थी, हाँ कोई लकी होगा तो ह्यूमन का मिल गया, अब क्या करेंगे? किसी नॉन ह्यूमन सोर्स पे हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। तो आप लोग कोई भी सिमिलर टाइप का कोई भी नॉन ह्यूमन रिसोर्स से आप निकाल के अब किडनी डाल भी दिए, तो प्रॉब्लम ये होता है बेटा, क्योंकि ये अनवांटेड है ना, मतलब हमारे बॉडी इसको एज अ नॉन सेल्फ डिसाइड करती है,
क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ होते हैं बेटा, कुछ होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज। वो क्या करते हैं, कुछ सेल्स को सेल्फ कहते हैं, कुछ को नॉन सेल्फ कहते हैं। अब आप ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का आपने किडनी डाल दिया, तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म के, हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं, वो कंसिडर करते हैं इस किडनी को एज अ नॉन सेल्फ। और यहाँ पे कंटिन्यूस वो टी सेल्स, बी सेल्स, ठीक है, सारा कुछ फैगोसाइट्स को इंड्यूस करके उसको मारने के चक्कर में लग जाते हैं। इससे आपकी नुकसान होती है, आपके हेल्थ का नुकसान होता है। तो ये सारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को आपने प्रिवेंट करना है, आपको इसको रोकना है। तो इनके हेल्प में आ रहा है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स, जिनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल। देन एट प्रेजेंट नियरली 30 recombinant therapeutics have been approved. Of these 12 are being marketed in India. ठीक है, 30 अप्रूव हुए हैं, इनमें 12 जो है वो इंडिया में मार्केट हुई है। इनमें बेस्ट एग्जाम्पल इज इंसुलिन। ओके, इंसुलिन फॉर द हेल्प ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखने के लिए, देखने से पहले यहाँ पे देख लो। तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन में 3 एरियाज हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। एक होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैंने बताया ना, इंसुलिन का जो जेनेटिक इंजीनियर करके हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, पहले के टाइम पे हम लोग कैटल से, पिग से एक्सट्रैक्ट करते थे, बट हम लोग ह्यूमन का सेल्स से ही बना रहे हैं इंसुलिन, ठीक है। दूसरा है जीन थेरेपी एंड देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर को कभी छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो, इंसुलिन इज यूज टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। मैंने बताया ना, बहुत सारे डायबिटिक लोगों को इंसुलिन का डोजेज देना पड़ता है, इंजेक्शंस लेते हैं, डायरेक्ट ब्लड को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ, इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स, दैट इज कैटल एंड पिग्स, causes the allergy and other type of reactions to the foreign protein। मैंने बताया ना, मैंने आपको किडनी का एग्जांपल लिया बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी कैटल की पैंक्रियाज से इंसुलिन ले रहे हो या कोई पिग के पैंक्रियाज से इंसुलिन ले रहे हो, तो ये आपको एलर्जी कॉज कर सकता है, बिकॉज योर बॉडी ट्रीट्स इट एज अ नॉन सेल्फ। ओके, वहां पे इम्यूनोलॉजिकल सारे रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नाउ इट इज पॉसिबल। अब हमारे पास एक नया सा जो है वो अच्छा सा टेक्निक है, दैट इज टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का यूज करके ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो कैसे देखने से पहले आपको ये देखना है, जो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन एंड इट इज नॉट जस्ट अ हार्मोन, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अब क्या समझ रहे हो पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोटीन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन। अब कई बार क्वेश्चन में आता है, पीवाईक्यूज में आया है, ठीक है, आप डायरेक्टली इंजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे ओरली, जैसे आप कोई टैबलेट खाते हो ना, ऐसे कोई इंसुलिन टैबलेट क्यों नहीं खाते? क्योंकि बेटा ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये पेप्टाइड है, मतलब एक प्रोटीनेशियस है। आप अगर इसको खाओगे तो ये जाएगा आपके पेट में, और आपके पेट में तो प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, वो उसको डाइजेस्ट कर देंगी, तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप इंसुलिन को ओरली इंजेस्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डाइजेशन। तो आप इसको कैसे लेते हो? इसको डायरेक्टली आप ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हो। Okay, directly you introduce this hormone in blood instead of taking it orally। ठीक है, तो इंसुलिन को कभी भी टैबलेट की तरह नहीं खाना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसुलिन कैसे बना है मैम? इट इज मेड अप ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मैंने बताया ना, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? प्रोटीन है। तो इसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, एक होता है चेन ए और एक चेन बी, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये लिंक होता है, समझ लो। ये ए चेन है, जो ब्लू में है वो ए चेन है, और जो बी है वो ग्रीन है। ओके, तो इनके बीच में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हुई, आपको दिख रहा है। तो ये होता है इंसुलिन। ओके, ये इंसुलिन है। नाउ, इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड as a prohormone, it needs processing to become a mature and functional hormone। अब हम लोग मैमल्स हैं, तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है बेटा? जो इंसुलिन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन।
ठीक है, ये इनएक्टिव प्रो हार्मोन की तरीके से आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये क्या होगा, आफ्टर प्रो हार्मोन इज मेड या फिर प्रो इंसुलिन बनने के बाद ये सारा कुछ प्रोसेस होगा एंड देन इट बिकम्स अ फंक्शनल हार्मोन, जस्ट एज योर mRNA। आपने पढ़ा है ना, यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है, वहां पे HNRNA बनता है या फिर इमेच्योर RNA बनता है। तो वहां पे प्रोसेसिंग होगी, वहां पे स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। ये 3 प्रोसेसेस होने के बाद आपको मेच्योर mRNA मिलता है यूकैरियोट्स में, जो ट्रांसलेशन के लिए रेडी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो इनएक्टिव या फिर प्रो हार्मोन मिलता है जो इनएक्टिव है, इसको प्रोसेसिंग होना पड़ता है कुछ, उसके बाद ये फंक्शनल हार्मोन बनता है। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्या प्रोसेसिंग होनी जरूरी है, तो आपने देखा इंसुलिन में ए चेन होता है, बी चेन होता है, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ए और बी के बीच में एक होता है दूसरा चेन जिसको हम कहते हैं सी पेप्टाइड, ए बी के बीच में आ जाता है सी। तो जब सी लगा होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रो इंसुलिन है, वो इनएक्टिव है। जब ये बनता है हार्मोन तो ए बी सी तीनों मिले हुए होते हैं। तो अब प्रोसेसिंग होनी है, तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, ए बी मिला रहेगा, सी को बाहर निकाल देंगे। जब सी बाहर निकलेगा तो तब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये एक्टिव इंसुलिन है। ओके, ये एक्टिव इंसुलिन है। तो यहाँ पे देख लो, जो प्रो हार्मोन है दैट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मेचुरेशन टू गेट द एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक मेजर थिंग है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमें आर्टिफिशियली इंसुलिन मिल जाए। तो यहाँ पे देख लो, इन 1983 एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, तो इसने क्या किया बेटा, इसने प्रिपेयर किया 2 DNA सीक्वेंसेस, दैट इज ए एंड बी। ओके, ह्यूमन के इंसुलिन में 2 चेन्स हैं ह्यूमन के बॉडी में, दैट इज चेन ए चेन बी। इनको इसने क्या किया, सेपरेटली सिंथेसाइज किया। ओके, सेपरेटली चेन ए बनाया, सेपरेटली चेन बी बनाया, फिर उनको क्या किया, मास में मल्टीप्लाई होने को छोड़ दिया बायोरिएक्टर में। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट ये किया, व्हाट दे डिड सी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब फर्स्ट इसने क्या किया बेटा, ह्यूमन का पैंक्रियास निकाला। ओके, सो आइलेट ऑफ लैंगर हैंड से इसने निकाला ए चेन और बी चेन को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो हमारा ए चेन और बी चेन है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। अब आप कोई भी एक प्लास्मिड ले लो, उस प्लास्मिड में आपने एक में ए चेन लगा दिया, यहाँ पे दूसरा प्लास्मिड, उसमें आपने बी चेन लगा लिया, तो ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। अब आप इसको क्या कर रहे हो, होस्ट के अंदर डाल रहे हो, फिर उसको क्लोन करने के लिए छोड़ रहे हो। ठीक है, तब क्लोनिंग होने के बाद आपको एक सारा जो पॉपुलेशन है वो ए चेन बनाएगी, जो दूसरा सारा पॉपुलेशन है वो बी चेन बनाएंगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे, तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद आपको सारे ए चेन मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे बी चेन मिल जाएंगे, और आर्टिफिशियली उनको आप प्रोसेस करके डाइसल्फाइड बॉन्ड मिला के आपने एक्टिव इंसुलिन बना लिया। अब इस एक्टिव इंसुलिन को आप कुछ ट्रायल करोगे, कुछ एनिमल्स के ऊपर ट्रायल करोगे, ट्रायल एंड टेस्ट करोगे, उसके बाद आप मार्केट में कुछ रेट डाल के उसका आप पब्लिसिटी करते हो। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देख लो, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लास्मिड्स ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, मैंने बताया। चेन ए एंड चेन बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, हमने ए चेन बी चेन कैसे एक्सट्रैक्ट किया, ह्यूमन पैंक्रियास से, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकाला। ठीक है, तो इससे हमने ह्यूमन इंसुलिन को यूज किया, क्रिएटिंग अ ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन। ओके, चेन्स यूज करके ह्यूमन बेस्ड इंसुलिन हमने क्रिएट किया। यहाँ पे देख लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बैक्टीरिया इकोलाई, इसमें से आप प्लास्मिड निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन सेल है जिसमें आपने इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। ओके, चाहे वो चेन ए हो या चेन बी हो। ठीक है, पैंक्रियास से आपने निकाल लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को रेन एंजाइम यूज करके ज्वाइन कर रहे हो। ओके, स्टिकी एंड्स बने हैं तो वहां पे ज्वाइन कर रहे हो बाय यूज ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ देते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ देने के बाद आप इसको कहाँ पे छोड़ रहे हो मल्टीप्लाई होने के लिए, इन अ फर्मेंटर और बायोरिएक्टर।
ओके, बायोरिएक्टर में मास या फिर बल्क में सिंथेसाइज करते हो। बल्क में करने के बाद आपने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब ए चेन को और बी चेन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा है, ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल से आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन जीन किया, यहाँ पे बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जीन इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड बाय यूजिंग रेन एंजाइम्स, इंसर्टिंग दैट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू अ बैक्टीरिया, देन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बायोरिएक्टर टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंसुलिन को बना लिया। अब यहाँ पे देख लो इसका नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे ए चेन है एक प्लाज्मिड के अंदर, दूसरे प्लाज्मिड में बी चेन है। अब आपने एक्सट्रैक्ट करना है इस ए चेन को बाहर निकाल के, यहाँ पे बी चेन को बाहर निकाल के। तो ए चेन बाहर निकाल लिया, बी चेन बाहर निकाल लिया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया ताकि आजू बाजू के जो जीन्स हैं वो सेपरेट होके सिर्फ ए चेन और सिर्फ बी चेन बचे। ओके, तो अब सिर्फ ए चेन सिर्फ बी चेन बचा, तो अब इसको आपने प्यूरिफाई किया, आइसोलेट किया, सब किया। अब इसको क्या कर रहे हो, मिला रहे हो बाय यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ताकि वॉट एवर यू गेट इज एन एक्टिव इंसुलिन। अब ये एक्टिव इंसुलिन आपके मार्केट में रहेगा। अगर आपके घर कोई भी एक डायबिटिक पेशेंट है, वो जाएगा, वो खरीदेगा इंसुलिन को, इंजेक्शन को अपने ब्लड में डालेगा। ठीक है, ऐसे मुंह में नहीं डाल के खाएगा, मैंने बताया ना, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन is a part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridges removed during maturation of proinsulin to insulin responsible for its biological activities। तो आप देख लो बेटा, सी पेप्टाइड जो है वो मेच्योर इंसुलिन का पार्ट नहीं है, ये प्रो इंसुलिन का पार्ट है ना, प्रो इंसुलिन दैट इज इमेच्योर इंसुलिन का पार्ट है, तो ये रॉन्ग है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, नो भाई, सी पेप्टाइड हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में बिल्कुल हेल्प नहीं करता। रिमूव्ड ड्यूरिंग मेचुरेशन, यस डेफिनेटली, वेरी गुड कृष्ण पार्मर। ठीक है, तो सी इज योर आंसर, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नो, तो सी आपका आंसर है बेटा। ठीक है, सी जो है आपका आंसर है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपने पढ़ना है एनसीईआरटी, ओके, जिसमें आपने सारे चीजें लाइन बाय लाइन याद करना है, और कुछ भी डाउट है तो कल की क्लास में मुझे पूछना है। कल क्लास नहीं रहेगी, क्लास रहेगी थर्सडे को मैं चाहती हूँ कि सारा बच्चा टाइम पे आए और पूरा अटेंशन के साथ आए और ये चैप्टर पढ़ के आए, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो एकदम बेकार पार्ट है बेटा, वहां पे क्वेश्चन आते भी नहीं है, वो हटा दो। ठीक है, आपने कहाँ से कॉन्सेंट्रेट करना है, बीटी कॉटन से कॉन्सेंट्रेट करना है, निमंटोड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इंसुलिन, फिर जीन थेरेपी जब करूंगी तो वहां पे कुछ चीजें बताऊंगी, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कुछ चीजें बताऊंगी, फिर आपको ट्रांसजेनिक जो पार्ट है वहां पे कुछ देखना पड़ता है, फिर एथिकल जो सोशल इश्यूज हैं वो। ठीक है, तो इस चीज को हम थर्सडे को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को। कुछ भी डाउट है पढ़ के आओ और मुझे पूछना। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन है तो, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो देन दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मैंने बताया ना बेटा, इस लिंक पे जाओ, टच करो और आपको सीधा आप ना खान एकेडमी के पेज पे जाओगे और उस वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, ओके, ग्रेट कृष्णा पामर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिंक मैं रीसेंड करूं, यहाँ पे तो है, एक मिनट में इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ अगर होता है तो। ओके ओके, सी लेट मी टेल यू, कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आपको यूट्यूब में ऐसे रैंडमली मत देखा करो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जो बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ, जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, जैसे वेदांतु हो गया या फिर कोई अनअकैडमी हो गया, इनका कंटेंट तो अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। आप एक चैप्टर के लिए आप 10 घंटे 12 घंटे आप लगा रहे हो, तो बताओ आप दूसरे सब्जेक्ट्स कब कॉन्सेंट्रेट करोगे, है ना। तो इसीलिए आप ना, खान एकेडमी एक ऐसा चैनल है, वहां पे आप, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल चीज बता रही हूँ, वहां पे आप ना शॉर्ट वीडियोस मिल जाते हैं आपको, कोई भी चैप्टर पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे ले लो। बाकी सबके लिए तो हम टीचर्स हैं,
है ना। तो ये जो निमेटोड रेजिस्टेंस है उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर मैं होती तो भी सेम एक्सप्लेन करती, बट मेरा लिए टाइम कंस्ट्रेन है, इसलिए मैं आपको वहां पे रिकमेंड कर रही हूँ। आप ये देख के आओ, थर्सडे की क्लास में मैं इसको पढ़ाऊंगी ना तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय।